Hello students. So today we are going to learn load talks, concept of load talk, and in what applications do we need that. So the load talks, the outline of this session will be objectives, outcomes, concept and reference from where I have taken the material. What is the objective? To understand different types of load talks. I will come to this point that why is this objective. Outcome. So outcome will be you will be able to distinguish between what is the active torque and what is the passive load torque. So in the previous also we have seen what is torque. Torque is nothing but a rotational force at a distance from the rotation axis. एक pivot है, pivot के corner से किसी चीज को घुमाना है. So whatever distance is there, that into force is nothing but torque. So horsepower is how fast the work can be done and is calculated torque multiplied speed. Torque is the capacity to do work. उसके पास capacity है और वो काम कर सकता है. Power is the speed at which the work can be done, and horsepower is how fast he does the work. So these three concepts are different. Horsepower is how fast the work is done, same related to power, only expressed in HPs. एंड टॉर्क इज नथिंग बट अ कैपेसिटी टू डू द वर्क. तो हर बंदे के पास टॉर्क तो होता है, लेकिन वो कितना फास्ट करेगा, उसके पास पावर कितने है, ये हमें ढूंढना है. सो व्हाट इज अ लोड टॉर्क? टॉर्क एक्चुअली इज classified into two: load torque and acceleration torque. So load torque is the amount of torque which is required constantly. If this is important, that is this is a torque which is required constantly. यानी अगर गाड़ी चलानी है तो उसको उतना फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, उसको उसका विंड का प्रॉब्लम जो है, जो टॉर्क उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है बाहर से, तो वो भी उसको ओवरकम करना है. उसको अगर रोड के सरफेस के ऊपर चल रहे तो बीच में आए हुए ऑब्स्टिकल्स है उसको भी ओवरकम करना है. सो ही हैज़ टू दैट द कार हैज़ टू प्रोवाइड दैट टॉर्क, constant torque for keeping him or herself, that is the car should be in motion. Okay, so this is the load torque. The load torque is the amount of torque constantly required for the application. It includes frictional load and gravitational load. Yes. Acceleration torque, it is a torque required just for the maximum acceleration and deceleration rate for the load. Acceleration torque is nothing but how I want to achieve that target, like how fast I want to achieve, how slow I want to achieve. If there is some speed breaker, I need to achieve the speed control very urgently if I have not taken prior action. Yes, अगर मैंने कुछ बहुत कम डिस्टेंस पे मैंने अगर स्पीड ब्रेकर देखा है तो in my drive, in my vehicle, I should be having acceleration torque which will take care that वो स्पीड ब्रेकर को हम ओवरकम कर पाए और हमें इतना जर्क भी ना बैठे जो कि एकदम सडन ब्रेक अप्लाई करने के बाद बैठता है. सो दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन टॉर्क. नाउ दिस लोड टॉर्क, दैट इज लोड टॉर्क इज क्लासिफाइड इनटू एक्टिव लोड टॉर्क एंड पैसिव लोड टॉर्क. So load torques which have the potential to drive the motor under equilibrium conditions are called as active load torques. Now what do you understand by equilibrium? Equilibrium is nothing a point at which if there is some load changes. अभी सोचो कि very simple, I was driving a vehicle on the flat road and suddenly I started climbing a hill. So the motor is same, गाड़ी तो same है, लेकिन रास्ता चेंज हो गया, that is the load change. So this torque is called active torque. And this has to be like, अभी हम बोल नहीं सकते ना कि अभी फ्लैट सरफेस के ऊपर गाड़ी चल रही है तो इट विल बी रनिंग एट 50 RPM और ऊपर स्टीप हिल के ऊपर वो 50 से नहीं चल पाएगी, ऐसे तो नहीं बोल सकते हम. स्पीड हैज़ टू बी कांस्टेंट. स्पीड हमें जो जिस स्पीड से चलाना है उतना तो चलाना है. लेट इट बी एनी, दैट इज टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो क्या करेगा ये जो एक्टिव लोड टॉर्क की जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ऐसी है कि अगर लोड चेंज भी हो जाए तो भी हम फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आ सकते हैं. दैट इज अगर मेरा सेट पॉइंट 50 है तो मेरा सेट पॉइंट 50 ही रहेगा, गलती से थोड़ा कम हो सकता है लेकिन फिर से वो रीगेन करके 50 तक जाएगा. दैट इज नथिंग बट एक्टिव लोड टॉर्क. And due to what are the examples of this? They are torque due to gravitational force, tension, compression and torsion. So tension and compression again the same. They are used in uncoilers, coilers, in steel rolling mills, in textile mills. In all these applications, tension and compression are very important. Okay, अगर टेंशन कम पड़ जाता है
तो मेरी सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी. इन इवन पेपर मिल्स ऑल्सो टेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट to be provided, that is that torque is very important to be provided by an uncoiler. Uncoiler is nothing but a equipment which uncoils the sheet. It can be of paper, it can be of steel, it can be of the cloth. Okay, so उतना टेंशन उसको मेंटेन करना है. गलती से उसने उतना टॉर्क नहीं दिया तो क्या होगा, उसे पूरा एक तो लूज पड़ जाएगा या फिर उसमें जर्क बैठेगा और इट में गेट टेयर ऑफ. ओके, so this active torque is very important. Then what is the passive load torque? So load torques which always oppose the motion and change their sign on the reversal of motion are called passive load torques, like friction, windage and cutting. So they always oppose the motion. अभी ये friction है, हमारी गाड़ी को आगे जाना है लेकिन फ्रिक्शन टॉर्क हमेशा हमें अपोज करेगा. फ्रिक्शन ऐसे, और फ्रिक्शन तो ज़रूरी है क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो गाड़ी आगे ही नहीं चल पाएगी. सो ऑलवेज फ्रिक्शन टॉर्क विल बी इन अपोजिट. Okay, and they change their sign on the reversal. Now they change their sign on the reversal. That means क्या है कि जब हम steep hill के ऊपर चढ़ रहे हैं, I am climbing up the hill, so the friction is against, yes. But when I am coming, descending, ऊपर से नीचे आ रही हिल से, तो वही friction मुझे assist कर रहा है. It is increasing my power. That's so these are called as passive load torques. Okay. Now we have discussed this but not with terminology, so we will discuss this components of load torque. So load torque is friction torque, windage torque, TF, TW, and the third one is torque required to do the useful mechanical work, that is TM. Now friction torque तो हमने बोल दिया. विंडेज टॉर्क, गाड़ी चल रही है उसके ऊपर विंड का फोर्स कुछ होगा, दैट विल बी विंडेज टॉर्क. एंड टॉर्क रिक्वायर्ड टू डू द यूजफुल मैकेनिकल वर्क. टेक अ केस ऑफ अ क्रेन. क्रेन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कुछ वजन लेके जाना है, तो वो हुआ उसका एक्चुअल यूजफुल वर्क. और ये जो ऊपर वाले जो टॉर्क्स है, फ्रिक्शन टॉर्क और विंडेज टॉर्क, ये उसके एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है कि वो उसको देना ही पड़ेगा ताकि वो काम कर पाए, एल्स इट वोंट वर्क. ओके, so in this figure this is a Coulomb friction which is always constant. This is friction, that is as torque increases at zero speed and at this torque point. Okay, so it is having some decreasing ratio, that is at high speed torque is 0 and at high torque speed is 0. Okay, and this is what is called friction, viscous friction. That is nothing but this torque is used doing the useful mechanical work. So friction torque, it is represented at the motor shaft. अभी रास्ते का फ्रिक्शन भी होगा, गाड़ी के बेयरिंग्स में होगा, गाड़ी के शाफ्ट में होगा, या इज मोटर का शाफ्ट जो कनेक्टेड है उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उसमें भी फ्रिक्शन होगा, एंड उसको भी हमें ओवरकम करना है. और दिस विल ऑल्सो बी कंप्राइजिंग ऑफ द लोड टॉर्क. विंडेज टॉर्क, व्हेन मोटर रन्स विंड जनरेट्स अ टॉर्क अपोजिंग द मोशन, सो दिस इज नोन एज विंडेज टॉर्क. टॉर्क रिक्वायर्ड टू डू द यूजफुल मैकेनिकल वर्क. अभी हमने बोला कि दिस इज हाउ आई वांट द टॉर्क which will be required to do useful work. Like अभी ये क्यों सीखना है हमें कि कोई एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनका स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता है. स्पीड कितना भी दो, बढ़ाओ कम करो, उतना ही टॉर्क दो, यानी उतना ही फोर्स उसको चाहिए तभी वो काम करेगा. वो आप फास्टली घुमाओ या स्लोली घुमाओ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. सो इट मे बी कई कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड. सेकेंड इज फंक्शन ऑफ स्पीड. अभी कह सकते हो कि कोई रोबोट है, अभी रोबोट को हमें घुमाना है, तो रोबोट क्या करेगा, स्पीड बढ़ाओगे. अगर मेरा कहना ये है कि मेरा स्पीड ये 100 RPM से चलना चाहिए मेरा रोबोट, तो ऑब्वियसली टॉर्क कम हो जाएगा अगर उसके ऊपर मैं हेवी लोड रख रही हूँ. अगर मेरा कहना है कि वो 50 RPM से चले और उसने 100 kg लोड उठाना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज सम रिलेशन विद दैट. अगर स्पीड बढ़ेगा तो टॉर्क कम ही होगा, और आपको अगर 50 RPM से चलना है तो आप टॉर्क कम कर दो, यानी लोड कम कर दो आपका, तभी वो 50 RPM से चलेगा. यस, सो दिस इज वन एप्लीकेशन. इट मे बी टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट. टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट का कहना क्या है कि ऐसे टाइम बीतेगा तो वो ऑटोमेटिक टॉर्क आपको कम लगेगा. यस, सो दिस इज एप्लीकेबल इन हाई इनर्शिया ऑब्जेक्ट्स. लाइक जब पहले स्पीड 0 होता है तब टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो
फैंस या प्रोपेलर्स मोशन में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमें टॉर्क कम लगने लगता है. सो दिस इज व्हाट इज टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट. एंड इट्स नेचर में ऑल्सो चेंज विद द लोड और मोड ऑफ ऑपरेशन. सो जैसे लोड चेंज होगा उसका ऑपरेशन चेंज होगा तो मेरा टॉर्क भी चेंज होगा. सो दिस 4 कंप्राइज ऑफ द टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू डू यूजफुल मैकेनिकल वर्क. नाउ गोइंग इनटू मच डिटेल अबाउट इट. तो ये क्यों सीखना है, तो ये क्यों सीखना है ताकि हमें स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए. अभी कैसे होता है कि अभी तो हमारे पास रेडीमेड है सब, ये ड्राइव है ये यूज करो, हाँ ले लो. सो दिस वाज नॉट द केस प्रायर. सो उसके लिए अगर हम डिजाइन इंजीनियर है, अगर हम किसी R&D सेक्शन में काम कर रहे हैं तो आई नीड टू नो व्हाट इज द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ ड्राइव. गिवन ड्राइव, जो ड्राइव हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है. कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोपेलर है, हमारे पास एक फैन है, हमारे पास एक ब्लोअर है, तो उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है कि शुरुआत में उसको बहुत ज़्यादा टॉर्क लगता है. सो दैट इज माई ड्राइव गोइंग टू सस्टेन. अगर है तो ही वो ड्राइव लो, तो ही वो मोटर लो. सो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू नो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स. सो सी व्हाट आई टोल्ड यू, दैट इज अगर टॉर्क बढ़ता है, दिस इज और टॉर्क ऑन वाई एक्सिस एंड स्पीड ऑन एक्स एक्सिस. सो एज सुन एज टॉर्क इंक्रीजेस, speed is 0, and as speed is increasing, torque is going to decrease, that is inversely proportional. And then second one is constant torque. Yes, this can be a lift, it can be a elevator. This is a coiler. Yes, so this is providing tension, तो अभी constant देना है या linearly देना है. और यहाँ का जो है ये है फैन और प्रोपेलर, ताकि उसका स्पीड बढ़ेगा. इट इज टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड. Constant torque type are working machines that have mechanical nature of work. For that the constant torque is required. So what are they? Shaping, cutting, grinding, shearing, cranes, conveyors handling constant weight. So constant weight है तो पता है कि कन्वेयर को उतना वजन उठाना ही है, तो भले आप स्पीड कम करो बढ़ाओ, नो नीड. हमें टॉर्क तो उतना ही चाहिए क्योंकि उतना वेट उठाने के लिए उतना ही टॉर्क लगेगा. आप कम करके तो वो उठा ही नहीं पाएगा, वो कन्वेयर आगे ही नहीं जा पाएगा. शेपिंग, कटिंग कर रहे हो तो जब तक कट उसको जो मेटल है उसको वीकन नहीं करता तब तक हमें टॉर्क बहुत लगता है. एंड वही नीचे तलक भी लगता है. ऐसा नहीं हो ना हाफ कट कर दिया तो वो टूट जाएगा, नहीं होता है. टिल एंड हमें करना है. बट द सेम इज अपोजिट विद ड्रिलिंग. अगर हम होल ड्रिल कर रहे हैं, होल बोर कर रहे हैं, तो क्या होता है शुरुआत में जब तक हमारा जो टिप है वो अंदर नहीं इंसर्ट होता तब तक हमारा टॉर्क बढ़ता है. लेकिन जैसे ही हम अंदर चले जाते हैं, हमारा जो वहाँ का अपोजिट फोर्स है वो ओवरकम कर लेते हैं. इट स्टार्टेड रिवॉल्विंग विद वेरी हाई स्पीड. सो दैट इज अ बोरिंग एप्लीकेशन. इन दिस केस इट इज नॉट कांस्टेंट टॉर्क, इट इज डिफरेंट. ओके, सो इन कांस्टेंट टॉर्क आई वांट टू प्रोवाइड कांस्टेंट टॉर्क irrespective of speed. Torque proportional to speed. So as my torque increases, my speed also has to increase. So this is used in separately excited DC generators and eddy current brakes, calendering machines. So calendering machines are nothing but the machines which are used to calendar the plies. एक रोल है, रोल करते रहो जो कुछ आपका रॉ मटेरियल है. तो आप ले लो क्लॉथ, ले लो आप रबर का शीट्स, ले लो आप स्टील का शीट्स ले लो. एंड देयर आई नीड कि जैसे टॉर्क बढ़ेगा आपका स्पीड भी बढ़ना चाहिए. आपका स्पीड कम होगा तो आपका टॉर्क भी कम होगा. Eddy current brakes. So eddy current brakes, you might have seen that there are mechanical brakes, there are electric brakes. Now these eddy current brakes are nothing but they use the principle of electromagnetic induction, and due to this the brakes being applied. और वहाँ का जो characteristics होता है वो it's proportional to speed. So as speed बढ़ेगा तो torque भी बढ़ना चाहिए, और torque कम होगा तो speed भी कम होना चाहिए. And the third one is torque is proportional to square of the speed. That is, in this case I need a very heavy torque. टॉर्क जैसे बढ़ेगा मीन्स स्पीड और टॉर्क इज नथिंग लाइक टॉर्क इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड. यस, तो फैंस है, रोटरी पंप्स है, कॉम्प्रेसर्स है, शिप प्रोपेलर्स है, तो जहाँ पे वेरी हाई इनर्शिया है शुरुआत का, वो घूम ही नहीं पाएगा. तब का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज नथिंग बट माई टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड. द लास्ट वन इज टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. यानी जैसे स्पीड बढ़ेगा टॉर्क कम होगा, टॉर्क बढ़ेगा स्पीड कम हो जाएगा. सो एज आई टोल्ड यू दैट इज इट बोरिंग मशीन्स, मिलिंग मशीन, स्टील मिल कॉइलर, ट्रैक्शन एंड लेथ्स. ट्रैक्शन में भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव को पहले हमें ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा. यस, एंड द रेफरेंस ऑफ दिस इज फर्स्ट कोर्स ऑन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स फॉर एसके पिल्लई. दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर इलेक्ट्रिक ड्राइव्स.
Okay, so thanks for watching.